بچپن میں ذہن بہت تیز ہوتا ہے، یادداشت ایسی ہوتی ہے کہ اس دور کی باتیں کبھی نہیں بھولتی۔ اس وقت میری عمر 5 برس تھی جب میں نے اور بھائی نے جو منظر دیکھا، اس کو قیامت تک کون بھلا سکتا ہے۔ بتاتی چلوں کہ میرا بھائی شہزاد مجھ سے صرف 1.5 برس بڑا تھا۔ نانی سے سنا تھا کہ ماں کی جب شادی ہوئی وہ 16 برس کی تھی۔ میرے والد امی کے چچا زاد تھے، وہ بہت خوشحال تھے۔ دادا نے ساری زندگی کی محنت سے ان کے لیے دولت جمع کی تھی اور ساری ذمہ داریاں اپنے بوڑھے کندھوں پر سنبھال رکھی تھیں۔ والد تو ہر غم سے آزاد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب دادا جان کا انتقال ہوا تو ابا جان کاروبار نہ سنبھال سکے۔ تایا جان باپ کے مرنے کے بعد اپنا حصہ لے کر الگ ہو چکے تھے۔ وہ اپنا جنرل اسٹور چلا رہے تھے، جبکہ ابا جان کو کمانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ کمانے سے لٹانا آسان ہوتا ہے۔ میرے والد نے یہ احساس نہ کیا کہ دادا نے کس مشکل سے 4 پیسے جمع کی ہیں۔ باپ کی دنیا سے جاتے ہی وہ عیاشی میں پڑ گئے تو میری ماں پر بھی برا وقت آ گیا۔ والد صاحب میری ماں سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن جب سے عیاشی کی طرف مائل ہوئے، نشہ کر کے گھر آنے لگے، تب نشے کی حالت میں امی کو خوب مارتے اور جب نشہ اتر جاتا تو رو رو کر معافیا مانگتے تھے۔ امی صورتحال سے تنگ آ گئیں۔ ایک دن ابا نے نشے کی حالت میں ان کو اتنا مارا کہ نیم جان ہو کر گر گئیں۔ پڑوسیوں نے ماموں اور نانی کو اطلاع دی۔ وہ آ کر میری والدہ کو اپنے گھر لے گئے۔ اس وقت میری عمر 3 سال جبکہ میرا بھائی 4.5 سال کا تھا۔ جب ماں روٹ کر مائکے بیٹھ گئی تھی، ماں اس حادثے میں اتنی مضروب ہوئی تھی کہ ہفتہ بھر اسپتال میں رہی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کے خلاف کوئی بیان دیا اور نہ زبان کھولی، لیکن ماموں اور نانی نے تہیہ کر لیا کہ اب تبسم کو گھر نہیں بھیجیں گے۔ چند دن بعد والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ معافی تلافی کرنے اور امی کو ساتھ لے جانے کے لیے نانی کے گھر آ گئے۔ امی نے جانے سے انکار کر دیا اور نانی نے بھی ابا سے کہا کہ تم گھر میں اکیلے ہوتے ہو اور نشہ کرتے ہو۔ نشے کی حالت میں انسان کو اپنی خبر تک نہیں رہتی۔ تم کسی دن یوں نہیں مارتے مارتے میری بیٹی کو مار ہی ڈالو گے اور اس کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں ہرگز اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گی۔ میرے والد 2 سال کے عرصے میں کئی بار امی کو منانے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے ہر بار انکار کیا۔ نانی اور ماموں نے بھی امی کا ہی ساتھ دیا۔ آخری بار جب وہ آئے تو بھائی شہزاد تقریباً 7 برس کے تھے اور برآمدے میں گیند سے کھیل رہے تھے۔ یہ صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ امی نے ناشتے کے برتن سمیٹے اور وہ دھونے کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ نانی اماں صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ میرے والد آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ چچی جان، میری بیوی کو اب میرے ہمراہ بھیج دو۔ مجھے بہت سزا مل چکی ہے۔ میں نے کوٹھے پر جانا اور نشہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس پر نانی نے کہا، میں کیسے یقین کر لوں؟ تم کوئی اپنا ضامن لاؤ ورنہ تبسم کو تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گی۔ غرض ایسے ہی کچھ باتیں ہوئیں اور میرا باپ نانی اماں کو دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ کئی بار ہو چکا تھا۔ تبھی نانی نے ابا کی دھمکیوں کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا۔ وہ 12 بجے کے قریب میری ممانی کے مائکے چلی گئی۔ ممانی کے یہاں بیٹا ہوا تھا۔ ماموں پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ نانی کے جانے کے گھنٹہ بھر بعد ابا پھر آ گئے۔ اس وقت امی، میں اور شہزاد گھر میں تھے۔ میرا بھائی کھیل رہا تھا اور میں اس کی لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھی جھولے لے رہی تھی۔ پہلے ابا آتے تھے تو ہم سے بات کرتے تھے، مگر اس وقت انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے دیکھا کہ ابا نے میری ماں کی گردن پر سے بال ہٹائے۔ اس وقت وہ ترکاری چھیل رہی تھی۔ بولی، سمر، مذاق مت کرو، ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ماں اب نہیں مان رہی۔ وہ نہیں مانتی تو تم مان جاؤ۔ ابا نے کہا، جب تک وہ نہیں مانتی میں کیسے مان جاؤں؟ ماں نے جواب دیا۔ میری ماں جب ابا سے گفتگو کر رہی تھی وہ ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ امی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ پشت سے حملہ کریں گے، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ابا نے چھرا نکالا۔ ان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر انہوں نے میری ماں کی گردن پر وار کرنے شروع کر دیے۔ گردن سے خون کے فوارے ابلنے شروع ہو گئے۔ میرا بھائی بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ تیر کی طرح دروازے کی سمت بھاگا اور باہر نکل گیا اور میں کچن میں چھپ گئی۔ سامنے بیرونی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا کہ نانی دروازے سے آ رہی ہیں۔ تبھی بھائی باہر ہی ان سے لپٹ گیا۔ وہ اشارے سے کہہ رہا تھا کہ جلدی جاؤ، اندر جا کر دیکھو۔ اس کے منہ سے الفاظ نہ نکل رہے تھے۔ نانی دوڑی ہوئی اندر آئیں۔ جو ہی انہوں نے صحن میں قدم رکھا، بیٹی پر داماد کی وار دیکھ کر وہ بچانے کی خاطر امی پر جھکی۔ تب ابا کا خنجر مشین کی طرح ان پر چلنے لگا۔ بوڑھی ہڈیاں کیوں کر ایسے وار سہ سکتی تھیں؟ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ ماں پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ ابا سمجھے کہ دونوں کا کام تمام ہو چکا ہے۔ وہ خنجر وہیں پھینک کر باہر کو نکل بھاگے، لیکن ان کو باہری لوگوں نے پکڑ لیا اور حوالے پولیس کر دیا۔ لوگ میری ماں اور نانی کو اسپتال لے گئے۔ قسمت کی بات کہ امی، جن کا کافی خون بہہ چکا تھا،
और सब इनको मुर्दा समझ रहे थे वो बच गईं। खंजर के वार से बचने को वो इधर उधर होती तो वार कंधों पर ज्यादा लगे थे। वो काफी दिन अस्पताल में दाखिल रहीं। अल्लाह ने इन्हें दोबारा जिंदगी दे दी और वो ठीक होकर मामू के घर वापस आ गई। मैं और शहजाद पहले ही मुमानी के पास थे। 2 साल मुकदमा चला, अब्बा को बिलाखिर फांसी हो गई। जिस दिन फांसी हुई ताया मामू के घर आए और इनके गले लगकर बहुत रोए। वो कह रहे थे कि मेरा एक ही भाई था, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फांसी लग गया। अब हमारे खानदान की वाहिद निशानी मेरा भतीजा है, जिससे मेरे बाप की नस्ल चलेगी। बेशक भतीजी भी मुझे बेटी की तरह प्यारी है, लेकिन ये पराया धन है। इसको ब्याह कर अपने घर चले जाना है। खुदारा मेरे भाई के बच्चों को हमें दे दो। मैं इनको पढ़ाऊँ लिखाऊंगा, इनकी अच्छी तरह देखभाल और परवरिश करूंगा। मेरे बाद मेरा भतीजा शहजाद मेरी जायदाद का वारिस होगा। चिकनी चपड़ी बातें करके मेरे ताया ने मामू को राम कर लिया। अम्मी ने मुझे इनके साथ ना जाने दिया क्योंकि वो अकेली रह गई थी। बहरहाल शहजाद को अपने हमरा लेकर चले गए। मामू इसलिए इस अमर पर रजामंद हो गए थे कि वो मेरी माँ की दूसरी शादी करना चाहते थे। तभी उन्होंने सोचा कि लड़का अपने वारिसों के पास चला जाए, बच्ची अभी छोटी है, इसका बाद में सोच लेंगे। इस तरह शहजाद ददियाल में और मैं ननियाल के हिस्से में आ गई। यूं हमारा बंटवारा हो गया। हालांकि अम्मी शहजाद को ताया के हवाले करने पर रंजीदा थी, मगर मामू के सामने मजबूर हो गई। ताया शहजाद को लेकर चले गए। इस दिन मैं बहुत रो रही थी। मेरा भाई मुझसे जुदा हो रहा था। हम हर वक्त साथ रहते और साथ खेलते थे। पहले पहले तो ताया और ताई शहजाद के साथ अच्छा सलूक रखते थे, प्यार करते थे। इनकी अपनी कोई औलाद ना थी। शहजाद को अपनाने के बाद अल्लाह ने इन पर ऐसा करम किया कि शादी के 16 बरस बाद वो भी एक बेटे के वालिदैन बन गए। ये एक मौजज़ा था, जबकि ये दोनों तो नाउम्मीद हो चुके थे। इसके बाद तो ताई के घर नन्हे मुन्नों का तांता बन गया। हर साल वो एक नए बच्चे की खुशी से मालामाल हो रहे थे। 5 सालों में ही ऊपर तले 4 बच्चों के वालिदैन बन गए। ताई का घर औलाद से भर गया, तो इस घर में शहजाद की गुंजाइश ना रही। जब वो 12 बरस का हुआ तो ताया ने इसको स्कूल से हटा लिया और अपनी दुकान पर बिठा दिया। वो कहने लगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अब मेरे साथ कारोबार में लगो और स्टोर को संभालो। मैं अकेला थक जाता हूँ। वो अक्सर सामान की खरीदारी के सिलसिले में बाहर चले जाते। तभी जर्नल स्टोर शहजाद के सुपुर्द कर जाते। कहते कि ठीक तरह से हिसाब किताब कॉपी पर लिखते जाना। इधर ताई की ये आदत थी कि शोहर जब भी माल खरीदने बड़े शहर जाते वो स्टोर पर आ जाती। ताया की गैर मौजूदगी में स्टोर से चीज़ें ले जाती और कह जाती कि इन चीज़ों का हिसाब किताब कॉपी में मत लिखना, वरना मैं तुम्हारे ताया को कहूँगी कि ये चीज़ें मैंने नहीं ली, बल्कि शहजाद ने चुरा कर अपने दोस्त गुल अमीर को दे दी हैं। इस बार भी जब ताया शहर से बाहर गए तो ताई दुकान पर गई और बहुत सी चीज़ें उठा लीं। कहने लगी, खबरदार इनका अपने ताया से कोई जिक्र ना करना, वरना मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगी तो तुम्हारा ताया तुम्हें बंदूक से मार देगा। उन्होंने ये बात शहजाद को डराने को कही थी। वो सच समझ बैठा और इतना डर गया कि इसी रोज शाम को दुकान से पैसे निकालकर भाग खड़ा हुआ। ऐसे रास्तों के सिम जिन्हें वो जानता भी ना था। अलबत्ता जाते हुए अपने दोस्त गुल अमीर को बता गया था कि मैं इस वजह से यहाँ से जा रहा हूँ। रेल में बैठा तो दोस्त को कहा कि मेरा दिल तो चाह रहा है कि माँ के पास चला जाऊँ, मगर ताया मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मामू के पास चला जाएगा। अब्बा ने मेरी नानी को मारा और माँ को भी मार देना चाहता था, तो अब ताया मुझे ना मार दे। इसने गुल अमीर को ये भी बताया कि वो फुप्पी के घर मुल्तान जा रहा है, मगर एक स्टेशन पहले ही उतर गया। स्टेशन पर उसे इधर उधर घूमते देखकर 2 आवारा शख्स इसके पीछे लग गए। वो इनके डर से करीबी मस्जिद चला गया। इमाम साहब ने उसे परेशान देखा तो करीब आकर परेशानी का सबब पूछा। शहजाद ने उनको तमाम अहवाल बता दिया। इन्होंने 2 दिन इसको अपने पास ठहराया और तीसरे रोज अपने एक अजीज जो जमींदार थे इनके पास मुलाजिम रखवा दिया। जमींदार साहब का नाम अली हसन था। ये एक अच्छे और मेहरबान दिल इंसान थे। शहजाद इनके जानवरों का सब काम करता था। घरेलू मुलाजिम था, लेकिन वो इसको अपने बच्चों की तरह शफकत से रखते थे। एक दिन इनको किसी ने बुरा भला कहा और गाली दी तो शहजाद से ये बर्दाश्त न हो सका और वो इस शख्स से झगड़ पड़ा। जबकि वो 2 जवान लड़के थे, ताकतवर थे और शहजाद दुबला पतला नातवां सा अकेला था। इसको खबर ना थी कि मालिक इसके पीछे आ रहा है। अली हसन ने तमाम झगड़ा सुन लिया। इन लोगों से भिड़ जाने की वजह से भाई काफी जख्मी हो गया था। जब जमींदार ने इन लड़कों को ललकारा तो वो भाग गए। ये वाकया अली हसन के खेतों में पेश आया था। जमींदार ने भाई को उसी वक्त अस्पताल पहुंचाया और शहजाद की वफादारी पर कमाल शफकत दिखाई। उन्होंने इससे घरेलू हालात और रिश्तेदारों के बारे में पूछा तो भाई ने
जज्बात से मगलूब होकर इनको तमाम रवादात कह सुनाई। इनको बहुत अफसोस हुआ कि ये बच्चा एक खुशहाल घराने का फर्द होकर जमाने की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने मेरे भाई से अम्मी का पता पूछा। अम्मी की दूसरी शादी हो चुकी थी और शहजाद को उनका पता मालूम ना था। बस इसी कदर मालूम था कि वो लाहौर में कहीं रहती हैं और इनका शोहर वैगन चलाता है। ये मालूमात भी भाई को गुल अमीर से मिली थी, जो कभी कभी मामू के घर जाता था। शहजाद ताया का पता भी ना बताता था। उसके दिल में खौफ बैठ गया था कि उसने ताया के पैसे चुराए थे, अब ताया मिल गए तो उसको नहीं छोड़ेंगे। इसी सबब वो लौटकर घर नहीं आया। जमींदार साहब ने शहजाद को आमादा किया कि वो हर हाल में अपने मामू, माँ या ताया से मिले। इसको एक बार अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। तब बहुत सोचने के बाद उसने माँ से मिलने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसने अली हसन से कहा कि आप मुझे मेरी माँ से मिलवा दें। इनको भी मुझसे मिलने की ऐसी ही चाह होगी जैसी मुझे इनसे मिलने की है। जमींदार साहब इसको लाहौर ले गए, जहाँ का अता पता इनके दोस्त गुल अमीर ने दिया था। ये इस इलाके में अम्मी का घर ढूंढते रहे। लोगों ने इनको इधर उधर घूमते देखा तो पूछा कि आप यहाँ क्यों बार बार चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो कासिम खान का घर ढूंढ रहे हैं, जो वैगन ड्राइवर है। एक मोहल्लेदार इनको एक मकान पर ले गया कि यही तेरे सौतेले बाप का मकान है। शहजाद ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया तो 4 छोटे छोटे बच्चे एक साथ दरवाजे पर आ गए और इनके पीछे एक औरत खड़ी थी, जो मेरी और शहजाद की माँ थी। इस रोज मैं अम्मी से मिलने इनके घर आई हुई थी। मेरे शौहर कभी कभी मुझे वहां ले जाते थे। मैं अम्मी के पीछे ही खड़ी थी। शहजाद ने देखते ही माँ को पहचान लिया, मगर अम्मी इसको ना पहचान सकी। मैं शहजाद को पहचान चुकी थी, मगर वो माँ की दीद में ऐसा गुम था कि इसने मेरी जानिब नजर ही ना की। तुम कौन हो? माँ ने अनजान बनकर कहा। तो मेरा भाई फटी फटी आंखों से अम्मी को तकने लगा कि माँ इतनी बदल चुकी थी, अपने ही बेटे को नहीं पहचान पा रही थी। तभी इसने हिम्मत करके कहा, माँ मैं हूँ तुम्हारा बेटा शहजाद, क्या तुम मुझे पहचानी नहीं हो? एक लम्हे को माँ के चेहरे पर मुसरत की लहर दौड़ गई, मगर अगले ही लम्हे तारीकी छा गई। वो खौफजदा हो गई। कहने लगी, शहजाद बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हारा आना पसंद नहीं करेगा। तुम मामू के घर चले जाओ, मैं वहां आकर तुमसे मिल लूंगी। वो इनकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैं और शहजाद दोनों ही सोच नहीं सकते थे कि माँ बरसों बाद अपने बेटे से मिलकर ऐसा रद्द अमल देगी। वो तो हैरान था कि अम्मी अजनबियों की तरह दरवाजे में खड़ी थी। इन्होंने बेटे को घर के अंदर आने को भी नहीं कहा, ना ये पूछा कि तुम अब कहाँ रहते हो, कितनी दूर से आए हो और कैसे मेरा पता तलाश किया है। अम्मी ने ये तक ना कहा कि बेटा शहजाद तुम लंबी मुसाफत से थक गए होगे, आओ 2 घड़ी आराम कर लो। शायद तुमको भूख लगी हो, प्यास सता रही हो, एक गिलास पानी पी लो या कुछ खा लो, फिर चले जाना। शहजाद हैरान और परेशान खड़ा था। माँ ने इसके चेहरे को देखा, फिर अपने चारों छोटे छोटे बच्चों पर नजर डाली और परेशान होकर रोने लगी। मैं इनको रोते देखकर भी महरे बलब थी, क्योंकि मामला जानती थी। मुझे मालूम था कि जब अम्मी की शादी हुई थी तो मामू ने इनके शौहर से कह दिया था कि तबस्सुम के बेटे को इसके ताया ले गए हैं। वो बच्चा अब आप लोगों की जिंदगी में नहीं आएगा। इस पर इस शख्स ने कहा था कि मैं भी यही चाहता हूँ कि लड़का अपनों में रहे। निकाह से कबल ये मामला तय कर लें कि इनके पहले शौहर का लड़का या तो अपने ताया के घर रहेगा या फिर आपके घर में। लड़के को अपने घर नहीं रखूंगा, अलबत्ता इनकी बेटी के मेरे घर में आने जाने और अपनी माँ से मिलने पर पाबंदी ना होगी। बाद में मेरे सौतेले बाप ने मेरी शादी अपनी कज़न के बेटे से करवा दी। इस तरह मैं इनके खानदान का ही हिस्सा बन गई। अपने माँ से जब चाहती मिलने जा सकती थी, लेकिन माँ की ये मजबूरी शहजाद को मालूम ना थी। ताहम वो इतना तो समझ चुका था कि यकीनन दूसरे शौहर ने इन पर पाबंदियां लगाई होंगी। तभी तो माँ इतनी डरी हुई थी। मैं चुप थी। सोच लिया था कि जब वो मामू के पास जाएगा मैं वहां इससे मिल लूंगी। वो खड़े खड़े यकदम मुड़ा और जीप की तरफ देखा, जिसमें बैठा हुआ शख्स इसका इंतजार कर रहा था। बोझल कदमों से अपनी जानिब आते देखकर उसने बुलंद आवाज से कहा, कम ना कर बेटे, अगर तेरी माँ के घर में तेरी जगह नहीं, मेरे घर में तो है। आजा गाड़ी में बैठ, वापस चलें। आजा, शाबाश। जाते हुए भाई ने एक नज़र मुझ पर डाली, लेकिन इस वक्त इसके दिल की कैफियत अजीब थी, इसलिए वो नहीं रुका। मुझे इसने पहचान तो लिया था। जब इसने माँ को पहचान लिया तो बहन को कैसे नहीं पहचानता। मुझे यकीन था कि वो ज़रूर मुझसे राब्ता करेगा या मुझसे मिलने मामू मुआने के घर आएगा, मगर मैं इंतज़ार ही करती रह गई और वो नहीं आया। ताया के खौफ की वजह से इसने मामू से भी राब्ता नहीं किया। शायद इसे किसी पर एतबार ना रहा था, ना अपने पर और ना किसी रिश्ते पर। बाद में इसने कुछ बातें गुल अमीर से कहीं, जो अम्मी के जरिए मुझ तक पहुंची। तब मैं बहुत पछताई।
کاش میں ہی اس سے کوئی بات کر لیتی، لیکن میں بھی اس وقت ماں کو خوفزدہ دیکھ کر سوتیلے باپ سے ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ آ نہ جائے اور مجھے بھائی سے باتیں کرتا دیکھ لے۔ یہ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ اس دن سے اپنوں سے شہزاد کے سب رشتے ختم ہو گئے اور ان سے مضبوط ہو گئے جو اپنے نہیں تھے مگر اپنوں سے زیادہ تھے۔